Hello friends. So today we will study probability. Uh, Before that, I want to introduce myself. I am Saurabh Pandey. I have done my BTech from Cochin University. It is in Kerala. So before that, so I did my BTech from Cochin University, and then it was in branch Electronics and Communication Engineering. I passed out in 2019. So during this coronavirus time, I want to use the unused time, you can say, because I am simply sitting at home. So I thought of making a video series, so that I could help my younger brothers to understand the very difficult topics which you may not be able to understand in the class. So the series will be free for everyone, but I also want to make an appeal that please help me in this increasing this channel. Okay, please subscribe the channel as well. So what do you want me to teach in? If it is English or Hindi, you can say. Otherwise, I will be teaching in both the languages. Okay, it will be a mix of Hindi and English, and I hope you will be understanding it perfectly well. In the first video, I won't be going to teach you very fastly. It will be very simple and very slow, so that you can understand the basic concept. And from second video, we will be trying to solve a lot of more numericals, so that because the question is going to finally come from numericals only, not the theory part. But for the first video, I would be not too fast. I will try to help you people understand the basic concepts, because if your basic concepts are clear, then everything will be fine. Okay, so I don't want to waste any further time. I'm going with probability. The probability, Probability, it is probability. Okay, तो probability खत्म नहीं, probability start. तो आप लोगों को probability कहाँ से आप लोगों को एक्सपीरियंस हुआ? सबको एक्सपीरियंस तो हुआ होगा रियल लाइफ में ना, कब probability समझा. मेरे लाइफ में जब मैं क्रिकेट मैच देखना शुरू किया था बचपन में, तो उस समय मुझे पता चल गया था हल्का फुल्का कि टॉस होता है, और टॉस या तो इंडिया टॉस जीतेगा या तो अपोनेंट टॉस जीतेगा. तो चांसेस बराबर थे. ठीक है, तो उस समय तो ये होता था कि टॉस जो जीता वही मैच जीत जाता था 2005-2006 के समय में. अभी तो इंडिया चेस बहुत अच्छा करता है, लेकिन तब का बात दूसरा था. तब हम लोग क्योंकि बैटिंग स्ट्रांग था अपना, तो हम लोग रन मार देते थे इतना ताकि बॉलर सेव कर ले. ठीक है, एनीवे वो सब अभी डिस्कस नहीं करना, अभी प्रोबेबिलिटी के बारे में करना है. तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी चांस है. चांस है कि टॉस कौन जीता, इंडिया टॉस जीता या अपोनेंट टॉस जीता. तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट चांस. चांस. ओके, प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट चांस. इट इज चांस. ओके, सो मैं थोड़ा सा थियरी पार्ट बता देता हूँ. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये बताओ. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसका आउटपुट रैंडम हो. एक सेट होगा, उसका कुछ आउटपुट्स होंगे, सेट ऑफ आउटपुट होंगे. जैसे अगर टॉस करते हो तो उसका आउटपुट क्या हो सकता है? या तो हेड होगा या तो टेल होगा. तो आप श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते ना कि कब हेड होगा कब टेल होगा. नहीं बोल सकते आप. ऐसा बोल सकते हो क्या कि फर्स्ट टाइम में हेड ही होगा, फर्स्ट टाइम में हेड होगा, सेकंड टाइम में टेल होगा? नहीं बोल सकते हो आप. ठीक है, नहीं बोल सकते हो. तो ये रैंडमली होगा, रैंडमली हेड आएगा, रैंडमली टेल आएगा. तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ. ठीक है, तो व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? Random experiment can be explained or can be defined as an experiment whose outcome is random. Okay, whose output is random, that it cannot be predicted. The output of the experiment cannot be predicted. The output will not be random. It will be the output will come from this set only, from this set only. For a coin, the output will be either head or tail. But you cannot say that for the first attempt it will be head or tail. Maybe it can be head, maybe it can be tail, maybe it can be head, maybe it can be tail. Okay, so this is random experiment. Similarly, दूसरा क्या एग्जाम्पल हो सकता है? कॉइन का हो गया एग्जाम्पल. दूसरा एग्जाम्पल आपका हो गया डाई को रोल करना. डाइस को अगर आप रोल करते हो, डाइस वगैरह तो आपको पता है ना. लूडो खेल रहे होगे, अभी तो कोरोना टाइम चल रहा है तो बाहर तो जा नहीं रहे होगे, तो लूडो से ही टाइम पास कर रहे होगे. तो उसमें डाइस होता है ना. डाइस क्या होता है? वो गोटी होता है जो आप उछालते हो, और उसमें क्या क्या आता है? उसमें या तो आपको ऐसे आ सकता है, आउटपुट फिक्स होगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6. ठीक है,
इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता ना, 8 तो नहीं आ सकता डाइस, डाइस का आउटपुट उछाले आप, ठीक है, तो क्या 8 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये सेट ऑफ आउटपुट्स हैं, और ये सेट ऑफ आउटपुट से ये आप आउटपुट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि फर्स्ट टाइम में 3 ही आएगा। ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि सेकंड टाइम में 5 ही आएगा, नहीं। तो ये आपका रैंडमली होगा, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द आउटपुट, द आउटपुट विल ओनली कम फ्रॉम दिस पार्टिकुलर सेट, बट इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ओके, so this is random experiment, random experiment, random experiment, ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो समझ में आ गया ये चीज़ कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। अभी क्या है कि हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि अच्छा बताओ कि एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मान लो ई इवेंट है, तो ई इवेंट का एक प्रोबेबिलिटी कैसे हम निकालेंगे? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आप एक कॉइन को टॉस करते हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि ये हेड होगा? तो ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटपुट का सेट हो गया। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड होगा? तो फेवरेबल आउटकम क्या है? 1 है, नंबर तो एक ही है ना, हेड है, लेकिन हेड कितना है? 1 है, तो 1 हेड है। और आउटकम्स कितना है? या तो हेड होगा या तो टेल होगा, तो 1 + 1 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज हाफ, ठीक है। सिमिलरली कॉइन में देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6, कॉइन के डाइस के लिए देखें अगर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा? मान लो तुमको 6 लाना है, इवेंट क्या होगा? 6। तो अगर 6 लाना है तो तुमको एक ही 6 होगा ना, सेट अगर बनाए तो 1 2 3 4 5 और 6। ये नहीं दिखा आपको? कोई बात नहीं। तो 2 3 4 5 6, ये जो आपका सेट हो गया, आउटपुट का सेट है, इसमें से 6 मान लो आपको लाना है। तो फेवरेबल आपका 6 हो गया, तो 6 कितनी बार है इसमें? एक ही बार है ना, 1 हो गया, इसलिए 1 मैंने रख दिया। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 6। तो 6 लाने का प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 लाने का प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 लाने का प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि सब एक बार आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, क्वेश्चन तो ये नहीं आएगा ना, क्वेश्चन जो आएगा वो मैं बताता हूँ आपको। और सब बताओ, वीडियो सही लगा अभी तक समझ में आया? समझ में आएगा तो लाइक कर देना यार। देख रहे हो ना, पसीना में मैं भी बना रहा हूँ वीडियो को, मेहनत कर रहा हूँ ना, तो आप लोगों को पसंद आना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ। I hope you will be understanding and liking this video. So if you are liking the video, what you can do is that you can simply subscribe the channel and also like the video. You can ask the questions as well. So it's fine. तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 6 boys and 5 girls are to be arranged in a row at a random. Then what is the probability? 6 boys हैं, 6 boys and 5 girls. 5 गर्ल्स, 6 बच्चे हैं, 6 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। सेक्स रेशियो अपना इंडिया में कम है, तो शायद ये भी एक एग्जांपल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 6 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर, ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर, इसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी? तो देखो, अगर ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर, ऑल द बॉयज सिट टुगेदर मीन्स एवरीथिंग इज पुट इन अ बॉक्स, ऐसे कर दो, 5 लड़कियों को एक बॉक्स में डाल दो, 1 2 3 4 5, इन सबको एक बॉक्स में डाल दो, ठीक है, ठीक। और फिर बचे बॉयज, तो ये एक बॉक्स हो गया। फिर बचे बॉयज, 6 बॉयज हैं, तो बॉयज को B1 B2 B3 B4 B5 एंड B6, मान लो ये 6 बॉयज हैं, ठीक है। तो आप 6 बॉयज को कैसे अरेंज कर सकते हो? हाँ, आप बताओ कि 6 बॉयज को आप कैसे अरेंज कर सकते हो? 6 बॉयज हैं और एक ये बॉक्स ऑफ गर्ल्स को एक बॉक्स मान लो, गर्ल का बॉक्स, ठीक है। तो यही अपना पूरा बात हो गया ना, 6 बॉयज और एक गर्ल,
ठीक है। तो आप इसको इसको आप कैसे अरेंज कर सकते हो पूरे चीज को, आप इसको 7 फैक्टोरियल वेज में सेव कर सकते हो। फेवरेबल इवेंट्स लिखो अभी, फेवरेबल इवेंट, तो 7 फैक्टोरियल वेज में आप इस चीज को पूरा अरेंज कर दिए, ठीक है। और लेकिन अभी क्या है कि ये जो गर्ल्स हैं, ये यही गर्ल्स है ना, 1 2 3 4 5, तो ये भी तो खुद में चेंज हो सकती हैं, आगे पीछे बैठ सकती हैं। तो ये 5 ढंग से बैठ सकती है ना, ये 5 ढंग से बैठेंगे, ये 5 ढंग से बैठेंगे, 4 ढंग से, ये 3 2 और ये। तो इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको 5 फैक्टोरियल लिखेंगे। तो ये आपका फेवरेबल इवेंट्स हो गया, 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। फेवरेबल इवेंट्स क्या हो गया, 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना होगा, टोटल इवेंट्स कितने होंगे, टोटल इवेंट्स कितने होंगे बताओ। अभी टोटल बच्चा 6 लड़का 5 लड़की दोनों एक साथ रहे हैं, तो 11 होंगे। तो ये 11 सीट्स होंगे ना, 11 सीट्स ऐसे होंगे, ठीक है। 11 मान लो, 11, तो 11 ढंग से इसको बैठना है, तो ये 11 फैक्टोरियल होगा। क्यों, क्योंकि इसको 11 को मैं इस फर्स्ट पोजीशन पे मैंने पहले पोजीशन पे अगर एक बच्चा बैठा, समझ रहे हो, ये नहीं आ रहा क्या, फर्स्ट पोजीशन पे अगर ये फैक्टोरियल है, ध्यान से देखना, फर्स्ट पोजीशन पे अगर 11 बच्चे बैठे हैं, तो इस पे कितने बच्चे बैठेंगे, इस पे 10 ढंग से बैठा जा सकता है। यहाँ पे अगर 11 ढंग से इसको इस पे बैठा जा सकता है, तो इस पे 10 ढंग से बैठा जा सकता है ना। फिर अभी क्यों यहाँ पे 10 ढंग से क्यों बैठा जा सकता है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी इसमें बैठ गया है या बैठ गई है, तो अब यहाँ पे 10 ही ढंग से बैठा जा सकता है। सिमिलरली इसमें 9 ही ढंग से बैठा जा सकता है, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी बैठ गए हैं। राम और श्याम तो मान लो बैठ गए हैं, तो अभी अनुराधा कहाँ से बैठेगी यहाँ पे, अनुराधा तो फिर इसी पे बैठेगी ना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 9 ढंग से इस पे बैठा जा सकता है, सिमिलरली 8 ढंग से, और ऐसे करके लास्ट में 1 होगा, ठीक है। तो वही इसको आप लिखोगे 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, ऐसे करके जाओगे लास्ट में 1। तो आप इसी को तो 11 फैक्टोरियल लिखोगे, इसी को तो 11 फैक्टोरियल लिखोगे। तो फेवरेबल इवेंट्स तो ये हो गया, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो गया, 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, ठीक है, 11 फैक्टोरियल। तो अभी प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ये समझ में आ रहा है ना, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फेवरेबल इवेंट्स था 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल समझ में आ गया, क्यों 7 फैक्टोरियल, और गर्ल्स इंटू 5 हो गया, ठीक है। और टोटल इवेंट्स कितना हो गया, 11 फैक्टोरियल। तो ये ऐसे सॉल्व होगा, ये आपका प्रोबेबिलिटी आ गया, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर, ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है। अभी दूसरा पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। ये बात समझ में आया आपको, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका दूसरा पार्ट ये है, हेलो या, तो अब इसका दूसरा पार्ट ये है कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। इसको मैं हटा देता हूं, बीच में स्पेस लगा। नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, नो टू, ये पार्ट 2 था क्वेश्चन का, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ठीक है, आगे तो फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, आप कॉन्सेप्ट समझ लो इसमें कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। तो अगर ऐसा हुआ कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, नो टू बॉयज सिट टुगेदर, ऐसा कुछ अगर आया, तो उसमें क्या होता है ना कि दूसरा जो बंदा है, ठीक है, दूसरा जो चीज है, इसमें लड़की का बात करें तो दूसरा बॉयज ही होंगे ना, तो बॉयज का सीट को फिक्स करो, बॉयज के सीट को फिक्स करो, ठीक है। ऐसे कर सकते हो B1 B2 B3, ऐसे करके जाओ, B4 B5, ठीक है, और B6। चलो इसको यहाँ पे लिखा देता हूँ, B1 B2 B3 B4 B5 B6, ठीक है। B6 तक समझ में आ गया ना। फिर उसके बाद भी एक जगह है, तो इन बॉयज को हम कैसे सेट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, इनको वापस से हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, 6 तरीके से ही अरेंज कर सकते हैं। 6 बच्चे हैं तो 6 तरीके से इनको अरेंज किया जा सकता है ना। अभी देखो दूसरा हो गया कि गर्ल्स को कैसे अरेंज करेंगे, गर्ल्स को कैसे अरेंज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स गर्ल्स के लिए कितना अवेलेबल हो रहा है, 1 अवेलेबल हो रहा है, इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ। गर्ल्स के लिए कितने सीट्स अवेलेबल हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7 सीट्स गर्ल्स के लिए अवेलेबल हो जा रहा है, ठीक है। लास्ट में 1 है,
और स्टार्टिंग में भी एक सीट है, इसलिए 7 सीट्स अवेलेबल हो जा रहे हैं गर्ल्स के लिए। तो अगर गर्ल्स के पास 7 सीट्स अवेलेबल हो रहे हैं और टोटल गर्ल्स हैं 5, तो कितने ढंग से उनका कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है? 7C5 ढंग से बनाया जा सकता है क्या? 7C5 ढंग से इनका कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, 7C5। ठीक है, तो 7C5 ढंग से तो इनको अरेंज किया जा सकता है, और उसके बाद ये आपस में भी इंटरचेंज होंगे, तो ये 5 फैक्टोरियल ये तो रहेगा। ठीक है, तो अपना टोटल फेवरेबल इवेंट्स कितना हो गया? ये दोनों का भी क्रॉस होगा, ये मल्टीप्लीकेशन थियरम है। ठीक है, तो फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए? BLE फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए? नंबर ऑफ वेज इन विच बॉयज कैन सिट and number of ways in which girls can sit, provided there are 7 seats and 5 girls are there, so 7C5 into number of girls can be sitting together in a box, तो उनको भी आपस में अरेंज करना पड़ेगा, तो ये 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और अपना टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना था? टोटल इवेंट्स तो अभी भी 11 फैक्टोरियल ही होगा, टोटल इवेंट्स तो अभी भी 11 फैक्टोरियल ही होगा। ठीक है, ये आपको दिखा यहाँ पे, आई होप आपको दिख गया हो। इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 7C5, ये था अपना फेवरेबल इवेंट, ये था टोटल इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसका? फेवरेबल इवेंट कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल इंटू 7C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये बॉयज़ के बैठने का तरीका, ये गर्ल्स के बैठने का तरीका, दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, और ये आपका टोटल इवेंट्स 11 फैक्टोरियल। ये आपका आ गया आंसर। आप इसको सॉल्व कर लोगे ना? कर लेना यार, कोई इशू नहीं है। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। समझ में आया? वीडियो थोड़ा पॉज कर लेना अगर लिखना होगा तो। क्वेश्चन आपको दिखाना, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर में आपको दिमाग में क्या रखना है? दिमाग में ये रखना है कि अगर ऐसा बोले कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर या नो टू बॉयज सिट टुगेदर, अगर ऐसा हुआ तो आपको दिमाग में ये रखना है कि जो जिसको बोल रहा है उसको छोड़ के अपने दूसरे को देखना है। दूसरे को पहले फिक्स कर दो, दूसरे का पोजीशन तुम फिक्स कर दोगे, उसके बाद हो जाएगा इजी। यही तरीका होगा। ठीक है, अभी दूसरा थर्ड क्वेश्चन क्या है? सी पार्ट क्या है इसका? सी पार्ट इसका है, ऑल द गर्ल्स आर नॉट टू सिट टुगेदर। ऑल द गर्ल्स डोंट सिट टुगेदर। ठीक है, ऑल द गर्ल्स आर नॉट टू सिट टुगेदर है, तो आप ही बताओ कि पहला क्वेश्चन जो हम लोग बोले थे कि ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर, उसका क्या था फेवरेबल इवेंट? उसका फेवरेबल इवेंट था 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, था ना? उसका था ना कि ऑल द गर्ल्स आर टू सिट टुगेदर, उसके लिए ये था। तो ऑल द गर्ल्स नॉट टू सिट टुगेदर, तो इसमें से मैं टोटल इवेंट्स को घटा दूं तो ये आएगा। ये बात आपको समझ में आई? ये बात आपको समझ में आ गई ना? तो प्रोबेबिलिटी हम निकाल लो आराम से। ये फेवरेबल इवेंट हो गया, फेवरेबल इवेंट, तो 11 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाई टोटल इवेंट्स 11 फैक्टोरियल। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 11 फैक्टोरियल। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, या तो आप पहला क्वेश्चन में सीधा 1 से माइनस कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो आपको पता होगा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए दोनों का सम होता है 1। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन का जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ही पूछा था ना। पहले पूछा था कि ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर, अभी पूछ रहा है कि ऑल द गर्ल्स डोंट सिट टुगेदर। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर, इसी में एक और कर देते हैं, पार्ट डी। अभी तक समझ में आया आपको वीडियो? थोड़ा सा एनसीआर एनपीआर भी देखना पड़ेगा, मैं इसके लिए स्पेशल वीडियोस भी बनाऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ा प्रोबेबिलिटी देख लेता हूँ क्योंकि प्रोबेबिलिटी थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एनसीआर एनपीआर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं सोच रहा था कि पहले इसको देख लिया जाए। सो लास्ट है नो टू बॉयज एंड नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। अभी क्या है? नो टू बॉयज एंड नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। चौथा पार्ट, नो टू बॉयज एंड नो टू गर्ल्स, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। राइटिंग मेरे समझ में आया? नो टू बॉयज एंड नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। ठीक है,
तो इसको कैसे बनाएंगे आप ही बताओ। दो बॉयज और दो गर्ल्स एक साथ नहीं बैठ सकते। मान लो कि मैंने बॉयज के सीट को कर दिया फिक्स, B1, B2, B3, B4, B5, B6 और ये B6, ठीक है। और अपने पास गर्ल्स कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 गर्ल्स हैं। वहां तक गया दिखा क्या, 5। फिर से वापस से थोड़ा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक जाओ 1 सेकंड। B1, B2, B3, B4, B5 और B6, ये 6 तरीके से बॉयज को अगर आप फिक्स कर देंगे तो इसमें बैठेंगी गर्ल्स, इसमें बैठती हैं गर्ल्स, गर्ल्स 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 गर्ल्स। अगर ये हम अरेंजमेंट कर पा रहे हैं तो आप बताओ कभी भी क्या लड़का और लड़की एक साथ बैठ सकते, लड़की दो और दो लड़का एक साथ बैठ सकता है क्या। इसके बीच में लड़की आ गई ना, इसके बीच में लड़की आ गई, इन दोनों के बीच में लड़की आ गई, इन दोनों के बीच में लड़की आ गई, ठीक है। सिमिलरली देखो गर्ल्स के बीच में, दो गर्ल्स के बीच में एक लड़का, 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 ठीक है। तो यही एक पॉसिबल अरेंजमेंट है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट्स। बॉयज को आप क्या कितना ढंग से बैठा सकते हो, 6 फैक्टोरियल वेज से बैठा सकते हो, और गर्ल्स को 5 फैक्टोरियल वेज से बैठा सकते हो। टोटल इवेंट्स अभी भी कितना होगा, टोटल इवेंट्स अभी भी कितना होगा, 11 फैक्टोरियल ही होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा इस इवेंट का, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 11 फैक्टोरियल, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गया। अभी तक 21 मिनट का वीडियो हो चुका है, 25 मिनट का, कितना हो गया, 25 मिनट का वीडियो बन चुका है भाई, ठीक है। तो इतना पे आपको मैंने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए 25 मिनट में। मेन बात ये नहीं था कि मैं धीरे पढ़ाया हूँ, मेन बात ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, मजा आया ना। तो अभी वीडियो को मैं पॉज बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगला वीडियो फिर मैं अपलोड करूंगा अगर वीडियो का अगर लाइक वगैरह सही रहा तो, और मैं कोशिश करूंगा कि प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊँ बढ़िया से, फिर NCR NPR पढ़ाऊंगा मैं, और फिर आपको आएगा मजा, ठीक है। तो आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर देना, क्योंकि देखो मेरे को भी पसीना हो रहा है ना, बहुत गर्मी है, फैन बंद करके मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि कैमरा ना हिले। तो मैं भी अगर मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करो। मेहनत क्या करना है आपको, बस एक सब्सक्राइब बटन दबा देना, ठीक है। और वीडियो फ्री होगा, सो डोंट वरी अबाउट चार्ज। और ये वीडियो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी अच्छे लेवल पे मैं लेके जाऊँगा आपको, कॉम्पिटिटिव लेवल पे, ठीक है। अभी तो बेसिक है, अभी आपको जेई मेंस तक तो मैं लेके चले जाऊँगा आराम से। जेई मेंस होना भी कोई इजी नहीं है, जेई मेंस में प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है कितना टफ होता है। तो टफ टॉपिक मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। चलो फिर ठीक है, मैं रखता हूँ, बाय।